Hello everyone. Today we will discuss the next session, part 3 of chemistry, and in part 3 we will discuss about the type of chemical reactions. The types of chemical reactions. Okay. So you know very well there are different type of chemical reactions we have studied, like means combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, precipitation reaction, redox reaction. There are different type of reaction in our class 10th chemistry syllabus. Okay, so now we will discuss in part 3 different type of reactions there, and means how they can be performed. Okay, so listen, let's start. Okay everyone, today we are discussing the means different type of chemical reactions. This is the next part, third part. Okay, in this part we will discuss different type of chemical reactions, how many type of chemical reactions, how they can take place. Okay, so there are different type of chemical reactions. Listen carefully. Okay, the first is combination reaction. The first is combination reaction. Combination reaction. Second is um, decomposition reaction. The second type is decomposition reaction. Decomposition reaction. Third is displacement reaction. Third type, displacement reaction. And fourth type is double displacement reaction. Double displacement reaction. Okay, double displacement. Next one is precipitation reaction. Precipitation. Okay, precipitation reaction. Precipitation. Exothermic reaction. Exothermic and endothermic reaction. Okay, endothermic reaction. So there are different type of reactions. Okay, next is redox reaction. Redox reaction, and redox reaction also known as two type: oxidation and reduction. Okay, now this session we will discuss about the different type of reaction. So first we will discuss about the combination reaction. Okay, in this session we will learn what is the combination reaction and what are the examples. Okay, so listen. The first type is combination reaction. Combination reaction. Okay, now listen carefully. What is the combination reaction? Listen. When two or more elements or compound are participate and form a single substance. Clear? So this reaction is known as the combination reaction. Let us understand with example. Suppose that there are two elements A and B, and they are participating and form a single substance AB. Yeah. So this is the type of combination reaction. Means in the combination reaction, two or more elements or compound combined and form a single substance, then this reaction is known as the combination reaction. Okay, अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं. Suppose that if we take an example like calcium oxide. Yeah, you know very well calcium oxide. This is a quick line. Yeah. Okay, calcium oxide react with water. Okay, and form calcium hydroxide. Okay, calcium oxide react with water and form calcium hydroxide. This calcium oxide known as a quick line. Okay, and calcium hydroxide known as a slacked line. Okay, slacked line. Okay, this calcium means when calcium oxide react with water and form calcium hydroxide, it means that two or more substance, two or more element, two or more elements, two and more substance are participated and form a single substance. Clear? Means calcium oxide and water molecules combined
to each other and form a calcium hydroxide. Okay, this is select lime. Okay, so this, listens carefully, calcium hydroxide also used for white washing. किस लिए होता है? Also used for white washing, यानी कि जो आप दीपावली पे जो घर में पुताई करते हो, ठीक है, उसके लिए होता है. ये मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर. मीन्स लाइम वाटर, या फिर आप जो मार्केट से परचेज करते हो उस तो आप जो नाम लेते हो वो नाम है इसका कलई. क्लियर? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज द लाइम वाटर. क्लियर? एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर white washing. So this is the combination reaction first type. Listen carefully. This combination reaction also known as the exothermic reaction. This combination reaction also an example of exothermic reaction, because when calcium hydroxide dissolve in water, then it can form calcium hydroxide and evolve heat also. Clear? So means the reaction in which heat is evolved is known as the exothermic reaction. Clear? The reaction in which heat is evolved known as the exothermic reaction. Okay, तो जैसे जो reaction जिनमें heat निकलती है after completing the reaction, ठीक है, that reactions are known as the exothermic reaction. Listen carefully. When calcium hydroxide combined with water then form, so when calcium oxide combined with water then form calcium hydroxide. This if in this calcium hydroxide means select lime, if in this select lime we can dissolve carbon dioxide gas, then this carbon dioxide gas converted the calcium hydroxide into the milky water. Clear? We form calcium carbonate plus H2O, and the color of calcium carbonate is white. Means when calcium hydroxide combined with carbon dioxide, then it form white precipitate of calcium carbonate. Okay, so means this calcium carbonate is also used for making chalk. Clear? यानी जो चौक होते हैं वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. ओके, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन्स जो बनता है वो भी इसी कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है. एंड मार्बल, जो मार्बल बनता है वो भी क्या होता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ओके, लेकिन ये एक ही कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म. मीन्स इनका जो बनने की जो प्रोसेस होती है, जो बनने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट can form chalk, can form lime water and can form marble also. Now listen carefully, ये बनते किस तरीके से हैं. Listen, देखिए, अगर लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन इज फॉर्म मीन्स when sedimentation process is happened, means by the sedimentation process of calcium carbonate, limestone is formed. Clear? And marble is a metamorphic rock. Marble is metamorphic rock. Yes everyone. So means marble is formed by the transformation of pre-existing rock. जो rock पहले से एटमॉस्फेयर में उन रॉक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उससे हमारा क्या बनता है, मार्बल. दैट्स व्हाई मार्बल इज नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक. क्लियर? नेक्स्ट लिसन केयरफुली, chalk. Okay, if we talk about chalk, the chalk is formed by the compacting process, means compacting in deep sea. Clear? जो गहरा समुद्र होता है, गहरे समुद्र में जो आपका मार्बल्स होता है वो हमारा एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है. तो उससे हमारा क्या बनता है, चौक का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो आपका सेम है, बट इन मीन्स व्हेन द मीन्स चौक, लाइमस्टोन्स एंड मार्बल आर फॉर्म बाय द कैल्शियम कार्बोनेट बाय द डिफरेंट प्रोसेस. मतलब इनकी जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है. जब कैल्शियम कार्बोनेट का डीप सी में कॉम्पैक्ट फॉर्म आ जाता है तो चौक का फॉर्मेशन करता है. जब उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है तो ये लाइमस्टोन फॉर्म करता है. और जब जो आपकी पहले से रॉक आपकी नेचर में प्रेजेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो डिफरेंट टाइप रॉक बन जाती है, तो मीन्स दैट रॉक इज नोन एज द मार्बल. और इस रॉक को हम और भी क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक. क्लियर? तो इन सब चीज़ों में ये हमारा क्या होता है, यूज होता है. इसके बाद हम सेकंड पार्ट्स की बात करते हैं. सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप इज, लिसन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकंड इज डिकम्पोजिशन.
The second type is decomposition reaction. Okay, now listen. Decomposition reaction. देखिए, when one element or one substance, one compound decompose two or three substance or element, then this reaction is known as a decomposition reaction. Clear? Listen carefully. क्या कह रहे हैं हम? Means जब कोई एक substance, कोई एक compound after completing the reaction, they can be break down, they can be split down two or three compound element, then this reaction is known as the decomposition reaction. Okay, एक example समझते हैं. Suppose that AB is a substance, कोई एक substance है. Clear? ये एक रिएक्शन हुई एंड आफ्टर रिएक्शन दिस कैन बी ब्रेक डाउन टू एलिमेंट ए एंड बी. तो दिस मींस वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन स्प्लिट डाउन 2 and 3 मींस एलिमेंट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, इस देखिए इसमें कुछ टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के. हमने एक एग्जांपल से समझा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस डिकम्पोजिशन कैन बी हैपन इन 3 वे. मींस वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, वन इज thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, and third is photolytic decomposition. Okay, so mean decompositions is 3 types. One is thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, and third is photolytic decomposition. Okay, when decomposition reaction take place in the presence of heat, clear, in the presence of heat, then this is known as the thermal decomposition. When decomposition take place in the presence of electric current, then this is known as the electrolytic decomposition. And when decomposition take place in the presence of sunlight, clear, then this reaction is known as the photolytic decomposition. Okay, तो सबसे पहले हम इन सभी के एक एक के एग्जांपल समझते हैं. व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. आप इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सभी की एक एक एग्जांपल्स लेते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन, listen, yes, देखिए, when decomposition take place in the presence of heat, then this decomposition is known as the thermal decomposition. Now listen, इसको अच्छे से समझते हैं. एक एग्जांपल्स के थ्रू एक एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट, लिसन केयरफुली, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? मींस देखिए कैल्शियम यानी कि ये हमारा क्या था, मार्बल फॉर्म करता है. यही हमारा क्या है, लाइमस्टोन फॉर्म करता है. और यही हमारा क्या है, एक तरीके से मींस चौक का फॉर्मेशन करता है. इसको हम लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं. क्लियर? तो मींस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, then this calcium carbonate break down into calcium oxide and quicklime. Clear? And second is carbon dioxide. Clear? So this is a decomposition, means one substance is decomposed 2 and 3 substance, means and in the presence of heat. That's why this reaction is an example of thermal decomposition. Okay, जब कोई भी एक substance, एक matter in the presence of heat की उपस्थिति में 2 या 3 अपने substance में या प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो उस डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके बाद. मींस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. दूसरा हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. मींस डिकम्पोजिशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, दैट डिकम्पोजिशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. नाउ लिसन केयरफुली. देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में क्या करते हैं, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. जब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड एंड सेकंड इज एनोड. क्लियर? 2 इलेक्ट्रोड, वन इज कैथोड एंड सेकंड इज एनोड. ओके, वी फिक्स दीज इलेक्ट्रोड इन एनी कंटेनर और बीकर. ओके, एनी कंटेनर और बीकर, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें फिक्स करेंगे एंड फिल द वाटर इनसाइड द बीकर. ओके, दिस इज अ मींस एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. नाउ लिसन केयरफुली.
These electrodes are connected by external circuits, means a battery, वहां से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. क्लियर? Yes. And these electrodes are enclosed by a test tube. मतलब इनको एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर देते हैं. क्लियर है एवरीवन? मीन्स ये इलेक्ट्रोड क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिए. ओके, नाउ व्हेन वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट, देन व्हाट विल हैपन, मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड इन द इलेक्ट्रोड, देन द वाटर प्रेजेंट इन द बीकर, यानी जो आपके पास बीकर है, उस बीकर में जो वाटर प्रेजेंट है, दिस वाटर स्प्लिट आउट, बिकॉज यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. क्लियर? तो बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट, this water is break down in their elements, means H plus O, यानी हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स. क्लियर? हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन. इसमें ये क्या हो जाएगा आपका स्प्लिट आउट हो जाएगा. मीन्स एक जगह आपकी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और दूसरी जगह क्या बनेगी आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी. यू नो वेरी वेल, when water is split out into hydrogen and oxygen, then hydrogen, because hydrogen is a positive and means electron donor. Clear? तो means hydrogen store कहाँ पे जमा होता है, मीन्स हाइड्रोजन स्टोर एट द मीन्स कैथोड. ये मीन्स हाइड्रोजन अटैच टू द कैथोड एंड स्टोर एट द कैथोड. ये कैथोड के पास जो आपका टेस्ट ट्यूब होगी, उस टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. जो आपकी ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस अगेन अट्रैक्ट टू द एनोड. क्लियर? एनोड के पास आएगी, बिकॉज ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस एलिमेंट एटम्स है. तो ये हमारा क्या होगा, मीन्स एनोड के पास आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मीन्स स्टोर हो जाएगा. ठीक है? तो इस तरीके से मीन्स आपका मीन्स वन सब्सटेंस या वन मॉलिक्यूल, वन कंपाउंड, बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर, ब्रेक डाउन, split out into two substance, two element. That's why this reaction is known as the electrolytic decomposition. इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस हो रही है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस. ओके, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का बेस्ट एग्जांपल्स है. क्लियर? यहाँ पे हमने H2O लिया, H2O यानी कि वाटर लिया हुआ है, इसलिए हम क्या ले, और भी क्या ले सकते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. एंड दिस सोडियम क्लोराइड आल्सो break down into sodium ions and chlorine ion in the presence of electricity. Clear? So this is the example of electrolytic decomposition. Next point we will discuss about, next type is the photolytic decomposition. Listen, when the decomposition take place in the presence of means sunlight, okay, so that decomposition is known as the photolytic decomposition. यानी कि ये हमारा क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. एंड ऐसा डिकम्पोजिशन जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट Ag यानी सिल्वर क्लोराइड. क्लियर? सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड केमिकल होता है. क्लियर? तो सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन इनटू द सिल्वर प्लस क्लोरीन. ओके, तो सिल्वर क्लोराइड किसमें ब्रेक डाउन होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में. क्लियर? एंड दिस सिल्वर क्लोराइड यूज्ड फॉर मींस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. कहाँ पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. क्लियर? ओके, तो मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. मींस द रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन which take place in the presence of sunlight is known as the photolytic decomposition. In the place of silver chloride, we also can take silver bromide. Silver bromide also take place, also used in the black and white photography. Clear? And this silver bromide also dissociate in their elements like silver and bromines. Clear? तो ये भी क्या है, silver और bromines में means dissociate होता है in the presence of sunlight. That's why this reaction is known as the means photolytic decomposition. Okay, तो ये हमारा पूरा डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो जरा इसको देख लेते हैं. देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिसन केयरफुली. देखिए,
डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीन डिस्प्लेस करना, किसी भी को क्या कर देना, डिस्प्लेस कर देना है। ये रिएक्शन कैसे होगी जिसमें ये वन एलिमेंट डिस्प्लेस टू अदर एलिमेंट्स। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मोर पावरफुल एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट और मोर पावरफुल एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड फॉर्म। क्लियर? मींस जो आपको जो मींस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा अपने रिएक्शंस में से, अपने कंपाउंड फॉर्म में से। क्लियर? तो जरा इसको देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शंस होती है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो आपका एलिमेंट क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूँ आपको, उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप नोट कर लेना, लिख लेना और याद कर लेना, उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है? तो देखते हैं, सबसे देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। इसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड ऑरम। लिसन, so this is the reactivity series, means इसमें क्या है कि means in this series means upper most element is more reactive to less means lower element, यानी कि जो आपका ऊपर वाला एलिमेंट आ रहा है वो नीचे वाले एलिमेंट से, नीचे वाले एटम से क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है? तो जो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले एलिमेंट से क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। सपोज दैट यहाँ पे देखिए Pb, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ पे देखिए आपका मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखिए तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। मींस ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एंड ऑरम इज लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये हमारा क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। इसको याद करने का तरीका क्या है, किस तरीके से इस सीरीज को याद करते हैं, कैसे? तो देखिए इसमें हम याद करेंगे PSC क्लियर करके मांगे आलू, PSC करके मांगे आलू, जॉन फेरस पंजाब में। ठीक है? PSC करके मांगे आलू, जॉन फेरस पंजाब में। इसके बाद हाइड्रोजन इसमें कॉमन हो गया। हाइड्रोजन के नीचे वो देखते हैं तो इसका है क्यों हाँ जी, AG एंड AU। क्लियर? क्यों, हाँ जी, AG एंड AU। ये कुछ हमारी ट्रिक्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। देखिए P फॉर पोटेशियम, PSC यानी पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, तो PSC यानी सोडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है? करके ये हमारा क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे इसका कोई भी मीन नहीं है करके। ओके? तो PSC करके, इसके बाद मांगे यानी कि मैग्नीशियम, ओके, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, जॉन यानी कि जिंक, फेरस यानी कि आयरन, पंजाब यानी कि PB लेड। ओके? जॉन फेरस पंजाब में। इसके बाद हाइड्रोजन हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन रखा गया है और इसमें इस जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मोर रिएक्टिव हैं जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स हैं उनसे। तो वो तो वैसे ही क्लियर हो रहा है एक तरीके से। इसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आपका क्या है, कॉपर, क्यों, हाँ जी, AG एंड AU। क्यों यानी कि कॉपर, हाँ जी यानी कि मरकरी, Hg, AG यानी कि सिल्वर और AU यानी कि ऑरम। तो इस तरीके से ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज जिससे हम पता लगा सकते हैं कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन देयर फ्रॉम देयर रिएक्शंस। क्लियर? तो अपनी रिएक्शन से क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ऐसे कंपाउंड फॉर्म से क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं और उससे समझते हैं। सपोज दैट हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, CuSO4। ओके? Then zinc react with copper sulfate, then you know very well। देखिए PSC करके मांगे आलू, जॉन फेरस पंजाब में एंड AG हाँ जी में। क्यों?
तो जॉन यानी जिंक, और ये आपको क्यों बाद में आ रहा है, मतलब जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट मींस जिंक रिप्लेस टू कॉपर फ्रॉम देयर रिएक्शन, फ्रॉम देयर कंपाउंड। ओके, अपने कंपाउंड से जो अपने कंपाउंड बनाया हुआ है उसे क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। इट मींस जिंक रिएक्ट टू कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, क्लियर। ओके, एंड कॉपर क्या है आपका अकेला बचेगा। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। कुछ और इसके एग्जांपल्स लेते हैं, तो कुछ और भी लेके देख लेते हैं। सपोज दैट आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, क्लियर। आयरन देखो, आयरन भी मोर रिएक्टिव होता है, जॉन फेरस, जॉन के बाद फेरस आ गया, यानी कि ये क्या है, ये भी मोर रिएक्टिव होता है। तो आयरन रिएक्ट विद कॉपर एंड फॉर्म आयरन सल्फेड प्लस कॉपर, क्लियर। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्ले, देखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, अकेला कर दिया, और इस जो आपका सल्फेट था तो इसके बाद खुद अटैच हो गया। ऐसे यहाँ पे आयरन कहता है इस कॉपर को हटा के रिलीज करके, और यहाँ पे किससे अटैच हो गया, सल्फेट से अटैच हो गया, तो आयरन सल्फेट बनाया। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये तो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जरा इसको देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोनों ही सेम है, डिस्प्लेसमेंट इन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल का मतलब होता है कि इसमें टू एलिमेंट्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब टू एलिमेंट्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सब अभी पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब क्या होगा, टू एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको से देखते हैं जरा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, क्लियर। सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड देन फॉर्म क्या बनेगा, ये बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेगा ये, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो एग्जांपल ऑफ किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले क्या किया कि इस में सोडियम ने रिएक्शन की किससे, क्लोरीन से, मतलब यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और लास्ट जब ये आपको बेरियम बचाता है, बेरियम ने भी क्या कर लिया, इस सल्फेट से क्या कर लिया, रिएक्शन कर ली। तो मींस दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी क्या है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी इनबैलेंस है, तो 2NaCl, देखो BaCl2 BaSO4 और 2NaCl। अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ओके, तो मीन इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, मीन्स ये हमारा क्या एग्जांपल है। तो मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, टू एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात